Good morning, church, सुप्रभात कलीसिया। and we are so excited to see you online. हमें बहुत खुशी हो रही है आपको ऑनलाइन देखते हुए। And during this season, it is so important for us to hang on and hold on to our faith. ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास पर निर्भय रहें। And Hebi is going to just read out a verse for us. मैं एक वचन पढ़ूंगी बाइबल से, रोमन्स 4:3। रोमियो 4:3 For the scriptures tell us, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है Abraham believed God, अब्राहम ईश्वर को मानते थे and God counted him as righteous because of his faith. और ईश्वर ने उनके विश्वास के कारण उन्हें धार्मिक माना था. And we want to encourage you to hold on to your faith. हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप अपने विश्वास पर निर्भय रहें। If God can do it once in your life, He can do it again and again and again. अगर परमेश्वर किसी चीज को एक बार कर सकता है तो वो फिर से कर सकता है। So join us as we lead you in worship. हमारे साथ आराधना में भाग लीजिए। Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, and knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence, and you never fail me yet. I know the night won't last, and your word will come to pass. My heart will sing your praise again. And Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence, you never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in
mountains. I believe I see you do it again. You made a way where there is no way. And I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountains. I believe I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. I see you move. You move the mountains. And I believe I see you do it again. I see you move. Oh, where there was no way. And I believe I see you do it again. Oh, yeah. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence, and you never fail. Oh, you never fail me yet. You never fail me yet. हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अब तक तू करता है, नहीं
शक्तिमान अब तक तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सच में परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। सारा महिमा, गौरव और आदर हम तुझी को देते हैं परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। Yes, Lord, there is none like you in the heavens and the earth. You deserve all glory, you deserve all praise. And even as we continue in an attitude of worship, may I request you to join in with us as we pray for our nation. प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं भारत देश और बाकी सारे देशों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 के जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में बीमार है प्रभु, तू उनको जल्द से जल्द चंगा करे। और हम प्रार्थना करते हैं सभी डॉक्टर और नर्स की सुरक्षा के लिए। हम प्रार्थना करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के वसूली के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के शांति के लिए और सभी देशों की शांति के लिए। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। आमीन। Good morning. सुप्रभात। My topic today is reset, आज का मेरा विषय है रीसेट कीजिए, and the theme और इसका विषय है is reset, रीसेट करें, realign, नए दिशा में करें and restart. और फिर से शुरू करें। We are all experiencing something हम ऐसे चीजों का अनुभव कर रहे हैं which we have never experienced before, जो हमने पहले कभी नहीं अनुभव किया है। the COVID-19. कोविड-19, The whole world is in a standstill. सारा संसार मानो थम गया है। No aircraft in the air, आकाश में कोई विमान नहीं and so no pollution. और इसलिए कोई पोल्यूशन नहीं, And so we have more birds and butterflies in our city. इसलिए हम बहुत सारे पक्षियां और तितलियां देखते हैं हमारे शहर में। No cars vroom past you, कार की आवाजें नहीं हैं no rumbling of trains. और ना ही ट्रेन की आवाजें हैं। Mumbai was a city मुंबई एक ऐसा शहर था that never sleeps at night, जो कभी रात को सोता नहीं था, but now it's very quiet. लेकिन अब वो बहुत शांत है। I remember an old song, मुझे वो एक पुराना गीत याद आता है, the city never sleeps at night. शहर कभी सोता नहीं रात को। The COVID-19 lockdown कोविड-19 का लॉकडाउन phases जो इसका चरण है are extending and extending and extending. कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। So now we have a lot of time in hand, तो आज हमारे पास बहुत समय है, and what are we supposed to do? सो हमें क्या करना चाहिए? I get 2 points in my mind. तो मेरे पास ऐसे दो बातें हैं। Firstly, पहली बात, follow all the precautions जो भी सावधानी की बातें हैं laid out by our authorities, जो हमारे अधिकारी कह रहे हैं, and be safe with your family. और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। The second point is, और दूसरी बात है, this is a season ये ऐसा समय है where we have a lot of time in hand. कि हमारे पास हाथ में बहुत समय है। 1. पहली बात, So this is the time to pray. सो ऐसा समय है कि हम प्रार्थना करें। Pray for those who have been affected by COVID-19. उनके लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 से प्रभावित हैं। Pray for their families उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें to have the strength और जो भी है उनको ताकत मिले to take care of them. उनके लोगों के लिए संभालने के लिए। Pray for those families उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें who have lost their beloved ones. जिन्होंने किसी को खोया है, Pray for the hospital staff, और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें, the doctors, जो भी डॉक्टर्स हैं, the nurses, जो नर्सेस हैं, everyone सबके लिए who take care of these affected people. जो भी प्रभावित है उनका जो ख्याल रखते हैं। Also pray for the poor people in our country, इसलिए हमारे शहर में, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, the laborers, जो मजदूर हैं, those who have lost their earnings. जिन्होंने अपने आय को खोया है। What we could do is, तो हम ये कर सकते हैं,
try our best to help them at this point. हम ऐसे समय में कोशिश करें कि हम उनकी सहायता कर सकें। We can give them a little money. हम उनको थोड़ी पैसे की सहायता दे सकते हैं। We can give them a little food. हम उनको भोजन दे सकते हैं। In the book of Matthew 25 verse 35, मत्ती के 25 के 35 में ऐसा लिखा हुआ है, when we come before the Lord, जब हम प्रभु के सामने आते हैं, Jesus will say, यीशु मसीह कहेगा "For I was hungry, कि मैं भूखा था and you gave me something to eat. और तुमने मुझे खाने को दिया। I was thirsty, जब मैं प्यासा था and you gave me something to drink. और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया। I was a stranger, मैं एक अनजान व्यक्ति था, and you invited me." आपने मुझे भीतर बुलाया। Dear brothers and sisters, इसलिए प्यारो भाई और बहनों, this is the time when God wants to speak to us. ये वो समय है जहाँ परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। God loves us, परमेश्वर हमसे प्यार करता है and we should respond with the same love और to उसी Him. प्रेम के साथ हमें उसे प्रतिकार करना है। He is waiting to speak to you. वो इंतजार कर रहा है कि वो हमसे बातें करे। He wants to guide you वो हमें मार्गदर्शन करना चाहता है in this life's journey. इस जीवन की यात्रा में। We all know the story हम सब जानते हैं इस कहानी को, of Martha and Mary. मार्था और मरियम की। In Luke 10, लूका 10 में Martha was so busy with household work, मार्था बहुत व्यस्त थी घर के कामों में, but Mary chose लेकिन मरियम ने ये चुना to sit at the feet of Jesus. कि वो यीशु मसीह के चरणों पे बैठे। Dear friends, प्यारे मित्रों, this is the time ये वो समय है for you to sit at the feet of कि Jesus आप यीशु मसीह के चरणों पर बैठें and listen to His guidance. और उसके मार्गदर्शन के बातों को सुने। He has many things to show you. उसने बहुत कुछ आपको बताना है। Your future will be brighter. आपका भविष्य और चमकदार हो सकता है। The next point, और दूसरी बात, God wants us परमेश्वर चाहता है हमसे to put all our priorities right. कि अपने प्राथमिकता को हम सही करें। He wants us to mainly वो चाहता है कि हम मुख्य live जिए a life ऐसा जीवन which is God-centered. जो परमेश्वर को केंद्र में रखता है। Then the next priority is our family. और दूसरी प्राथमिकता हमारा परिवार है। The next priority is our church ministry. और फिर प्राथमिकता है हमारी कलीसिया की सेविकाई। And then is our job. और उसके बाद हमारी नौकरी है। And then our friends. और फिर हमारे मित्र लोग। God wants us to check our priorities. परमेश्वर हमारे प्राथमिकता को हमें चाहता है कि हम जांच करें। Now we come to an important point. हम एक महत्वपूर्ण विषय की ओर देखते हैं अब। God wants to reset our lives. परमेश्वर हमारे जीवन को रीसेट करना चाहता है। He wants to change the course of our life. वो हमारे जीवन की राह को बदलना चाहता है। This is the time ये वो समय है to focus on our inner being, कि हम अपने भीतर झांके, in our inner spirit, अपने अंदर आत्मा में, rather than the outer physical अपने बाहरी चीजों को छोड़कर or the external body. और जो अपने बाहरी शरीर को छोड़कर। Are we right with God and man? क्या हम परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ सही हैं? If not, अगर नहीं, let's reset our lives. आओ अपने जीवन को हम रीसेट करें। Psalm 119 verse 112 says, भजन संहिता 119 का 112 कहता है, I incline my heart मैंने अपने हृदय को इस ओर किया to perform कि मैं करूं the statutes forever, तेरे विधियों को हमेशा to the end. अंत तक। What are statutes? और वो विधियां क्या हैं? Instructions, परमेश्वर ने दी गई निर्देश, laws, उसके नियम, directions, उसके दिए गए दिशाएं ways of the Lord, और उसके रास्ते, principles of the Lord. जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं। God wants us परमेश्वर चाहता है हमसे to incline our heart कि अपने हृदय को हम so that we will be able to perform all these things ऐसा करें कि हम इन सब बातों को पूरा कर सकेंगे and listen और सुन सकें to His instructions. उसके बातों को। I incline means मैं अपने हृदय को उस ओर करता हूँ, इसका अर्थ ये है I've got to change my course away from my normal course of life. मुझे अपने जीवन के रास्तों को, जो सामान्य जीवन का रास्ता है, उससे अलग करना है। In the normal course of life, हमारे सामान्य जीवन के रास्ते में we may be discouraged, हम हो सकता है निराश हैं, we may be despair, हम निराश होंगे, we may be in sin, जहाँ हम पाप में होंगे, like addictions, अलग अलग गंदी आदतों में, lusting, हमारे अभिलाषाओं में, pride, घमंड में, anger, गुस्से में, whimsical moods. हो सकता है हमारी मानसिकता ठीक नहीं। God wants us now परमेश्वर चाहता है हमसे अब incline, कि हम उसकी ओर करें, change our normal course. अपने रास्ते को बदल दें। In the book
of Proverbs 4:23, नीति वचन के 4:23 में ऐसा लिखा है, it says, "Guard your heart, ऐसा कहा गया कि अपने हृदय की रक्षा करें, because issues of life flows from क्योंकि the heart." जीवन के जो सोते हैं उसी से बहते हैं। In other words, अलग शब्दों में guard the behavior of your heart. अपने हृदय के आचरण को ध्यान दे। It has to happen inside your heart. वो आपके हृदय के भीतर होना है To have a right behavior, कि आपके हृदय में एक अच्छा आचरण हो। it is the initial belief ये आपका जो शुरुआत का विश्वास है that drives the final good or bad behavior. जो आपके आगे अच्छे आचरण को या बुरे आचरण को निर्धारित करता है। We may make New Year's resolutions, हम हो सकता है हर साल एक नया निश्चय करते हैं but after some weeks और कुछ हफ्तों में ही, or months, महीनों में we break it हम उसे तोड़ देते हैं, because our beliefs are weak. क्योंकि हमारे विश्वास जो है हम कमजोर हैं। It is your heart यह आपका हृदय है which has the tendency जो जिसका कार्य ऐसा होता है to decline to a default position. कि वो फिर से अपने पुराने स्थान पर पहुंच जाए। So take charge of your heart. इसलिए अपने हृदय को नियंत्रण में ले लें। Good or bad habits जो भी अच्छी या बुरी आदतें होती हैं determines the beliefs in your heart. वो आपके अंदर जो विश्वास है उसे दिखाती हैं। You got to change your habits आपके आदतों को आपको बदलना है, to change your beliefs, अगर आपके विश्वास को आपको बदलना है, to change your behavior, अगर आपके आचरण को आखिर में बदलना है, so that you may accomplish the statutes or the principles of the Lord. ताकि आप प्रभु के विधियों और नियमों को पूरा होता हुआ देख सकें। So how can you change your habits? तो कैसे आपके आदतों को बदल सकते हैं आप? Because when you change your habits, क्योंकि जब आप आपके आदतों को बदलते हैं you will change your beliefs. आपके विश्वास को बदलते हैं, And when you change your beliefs, और जब आपके विश्वास को बदलते हैं your behavior will automatically change. आपका आचरण खुद ही बदल जाएगा। Verse 113 says, आयत 113 कहती है, I hate a double-minded, मैं दो मन के व्यक्ति से नफरत करता हूँ, but I love your law. लेकिन मैं तेरे नियम से प्रेम करता हूँ। God does not hate a person, प्रभु किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता है, but he hates the double-mindedness लेकिन दो मन के स्वभाव से वो नफरत करता है। in a person. एक व्यक्ति के अंदर जो होता है, A vacillating mentality एक ऐसी मानसिकता है जो is what he is not happy with. जिससे वो खुश नहीं होता। In fact, hate सच्चाई में ऐसा है कि नफरत is the most powerful motivation वो सबसे सामर्थी उत्तेजनक चीज है to change, जो बदलती है, not love. ना कि प्रेम। So make a list of what you want to change in your life इसलिए ऐसे बातों की आप लिस्ट बनाइए जिससे आप आपके जीवन में बदलना चाहते हैं, and start hating और उन बातों से आप नफरत कीजिए, those things, वो बातें, for it will bring you down क्योंकि वो आपको नहीं तो नीचे लाती हैं and it can bring you failure. और आपको नाकाम बना सकती हैं। Say, बोलिए, I hate self-pity. कहिए कि मैं खुद पर दया करना नफरत करता हूँ। I hate getting late. मैं जो है लेट होना जो नफरत करता हूँ उससे। And don't say, I love being on time. ना कहिए कि मैं समय पे रहना प्रेम करता हूँ। Say, कहिए, I hate waking up late. मैं नफरत करता हूँ देर से उठना। And don't say, I love getting up early. मत कहिए कि मैं जल्दी उठने से प्रीति रखता हूँ। Say, I hate eating carbs. कहिए कि मैं जो चर्बी से भरी चीजें हैं उससे खाने से नफरत करता हूँ। And don't say, I love eating more proteins. और मत कहिए कि मैं बहुत सारा प्रोटीन खाना पसंद करता हूँ। Say, I hate smoking. कहिए कि मैं धूम्रपान से नफरत करता हूँ। Say, I hate gossiping. कहिए कि मैं बहुत सारी बातें करने से नफरत करता हूँ। Say, I hate backbiting. कहिए कि मैं पीठ पीछे बात करने से नफरत करता Say, हूँ। I hate adultery. कहिए कि मैं व्यभिचार से नफरत करता हूँ। Say, I hate fornication. कहिए कि मैं ऐसे गलत रिश्तों से नफरत करता हूँ। I hate pornography. कहिए कि मैं गलत तस्वीरें, गलत वीडियोस देखने से नफरत करता हूँ। I hate robbing and cheating. मैं जो है चोरी करना और धोखा देने से नफरत करता हूँ। I hate wasting food. मैं जो है भोजन जो है व्यर्थ गंवाना उससे नफरत करता हूँ। I'd like to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। I love what it does for me, मैं प्रेम करता हूँ उन बातों से जो वो मेरे लिए करता है, but I hate what it does to me. लेकिन मैं उस बातों से नफरत करता हूँ जो मुझ में करता है। For example, एक उदाहरण के तौर पर, I love chocolates for what it does for me मैं चॉकलेट से प्रेम करता हूँ जो वो मेरे लिए करता है, because I feel happy and satisfied when I eat chocolates. क्योंकि मैं बहुत खुश महसूस होता हूँ और संतुष्ट महसूस करता हूँ क्योंकि जब मैं चॉकलेट खाता हूँ तो
but I hate what it does to me. लेकिन मैं वो नफरत करता हूँ कि वो मेरे अंदर क्या करता है। I put on weight. मैं जो है अपने वजन को बढ़ाता हूँ। So start hating that इसलिए उसका नफरत करें and say, I hate putting on weight. और कहिए कि मैं वजन बढ़ाना से नफरत करता हूँ। I love the taste, मैं जो है स्वाद से प्रेम करता हूँ, but I hate the outcome. लेकिन जो उसका नतीजा है उससे मैं नफरत करता हूँ। A healthy hate एक स्वास्थ्य भरा नफरत जो है is good वो अच्छा होता है and it can change your habits. और वो आपके आदतों को बदल सकता है And finally, और आखिर में it can change your behavior. और वो आपके आचरण को बदल सकता है। Thank you. धन्यवाद। If you would like to invite Jesus into your life, यदि आप यीशु को आपके जीवन में बुलाना चाहते हैं to reset, कि वो आपके जीवन को रिसेट करे, realign, नई दिशा दे and restart your life, और नई शुरुआत दे आपके जीवन को, please repeat this prayer after me. तो कृपया करके इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप बोलिए। Dear Lord Jesus, प्यारे प्रभु यीशु, sorry for all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। Thank you for dying on the cross. मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद। Be a part of my life. मेरे जीवन का हिस्सा बन जाइए। We would like to end this time in prayer. सो इस समय को हम प्रार्थना के साथ अंत करना चाहेंगे। Lord, protect and guide us प्रभु हमारी रक्षा करे, हमारा मार्गदर्शन करे throughout this week. इस पूरे सप्ताह। May the grace of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God the Father, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you. और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता आपके साथ रहे। Amen. आमीन।